चलो आ गए. Hello everyone. Hi Shalu. Hi Shreya. Shreya, can you please do it for me? Like pass the message in the group. Your friends, those who are there, those who might not have got. Because I scheduled the session very late today. I guess I scheduled the session nearly 7:30 or 8 o'clock. So I was a bit late in scheduling the session. So do it for me. Good evening, Shreya. Good evening. Welcome everyone. Thank you so much for joining today's class. Guys, in today's session, we will be having direct and indirect speech, quick explanation. आज का session ये final है. After this session, we will not be having direct and indirect speech anymore. Okay? Then from Saturday onwards, we are going to start with model verbs. Saturday से हम model verb start कर रहे हैं. No, 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 Shreya, don't do that. Never, 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 never do that. Okay? चलो start करते हैं. Let it be. So guys, mainly our focus in today's session will be on exclamatory sentences. हमारा जो focus होगा आज वो exclamatory sentences पे होगा. So first of all, before starting exclamatory sentence, I would like to ask a question to all of you. Can you please explain me what is an exclamatory sentence? Exclamatory sentence मतलब क्या? Exclamatory sentence એટલે શું? ચાલો જવાબ આપો. Everybody please answer. What is exclamatory sentence? You can also answer what is the use of exclamatory sentence. Everyone, चलो फास्ट. क्या यूज है? हाय उमेश तिवारी. क्या यूज है exclamatory sentence का? Come on fast everyone. Why do we use exclamatory sentence? हमको exclamatory sentence क्यों यूज करना पड़ता है? और ये what is the use of exclamatory sentence in English? Who's going to explain me? Nobody? Okay, let me explain you. Exclamatory sentences are used to explain or used to express strong emotions. Once again, exclamatory sentences are used to express strong emotions. Now when we talk about strong emotions, तो उसमें क्या क्या आता है? Anger, happiness, surprise. These are the things, many more things, but these are few that shows strong emotions or the expressions that comes out all of a sudden, for which you cannot prepare. I mean, you cannot prepare when you have to be happy. You cannot prepare yourself कि अच्छा इस sentence के बाद मुझे गुस्सा होना है. तो the expressions, the feelings, that come out all of a sudden, जो अचानक आपके अंदर आए, वो होती है strong emotions or sudden expressions. So when you have to explain sudden expressions, I am happy, wow, I am happy, difference है दोनों में ना जब आप बोल रहे हैं. I got the point. It was good. Awesome man. I got the point. You're extremely, you can say that, representative. Your art of representation was superb. So difference है दोनों में. ठीक है? What? I never do that. Surprise, strong, in short, जब strong emotions आपके निकले जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं कर पाते, वैसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. ठीक है? अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदले, दैट इज व्हाट आई एम गोना एक्सप्लेन यू टुडे. ओके, these are the rules which I am constantly emphasizing in every lecture. Like simple present tense you have to change into simple past, is are will change into was were, has have will change into had. So you guys are now mastered in that one. Okay, then similarly simple past tense will change into past perfect, was were changes into had been, has have changes into had, will shall changes into would, can changes into could, may changes into might. So these are the things that I have already explained in previous two sessions. Okay, so this is just a quick revision. Then directly jumping to the exclamatory sentence and its example, but before that let me explain you few more things, and that is time and place related word, like here changes into there, this changes into that, tomorrow that,
the next day, today, that day, yesterday, the previous day. So बेसिकली ये सारे चेंजेस हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं. अगर आपको नहीं आ रहा है या समझना है डिटेल में, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज एंड स्क्रीन पे इसकी जो है इस सेशन के एंड स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट जो मतलब प्रीवियस जो हमारा सेशन कंप्लीट हुआ है उसकी लिंक होगी. लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एंड आई विल ट्राई टू पुट इट इन द कार्ड एज वेल. तो वहां से जाके भी आप कंप्लीट इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट ही है, वहां से आप पूरा बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप कर सकते हैं. ठीक है, वेरी गुड सालू राज, वेरी गुड रंजन प्रजापति, वेरी गुड श्रेया एज वेल. सॉरी डियर, आई डिड नॉट सी योर messages, like I was busy in explanation, so I could not see that, but nevertheless it's quite good, superb, all of you are right. Okay, now coming to few example, you see here, for definition purpose I have already explained you a sentence that expresses a state of sorrow, joy, wonder. अब इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं strong emotions. okay, क्या लिख सकता हूं? strong emotions. तो the sentence that expresses strong emotions are called or is called or is known as exclamatory sentence. You can see few example. Hooray! I have won the competition. So that is showing a state of joy, that you're very happy. Alas, yaar, shit. I couldn't qualify this time, yaar. नहीं हो पाया यार. You are in little bit of grief. You are in sorrow, state of sorrow. Wow! I mean, like Saif Ali Khan just, I mean, wow! What a beautiful car. It's a wonder. Surprise. Okay? So basically, whenever you are changing exclamatory sentence from direct to indirect, अब हम टॉपिक पे आते हैं. जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आप बनाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर. क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टेड ऑफ said और said to, said और said to के लिए आपको क्या लिखना है? exclaimed with. once again, exclaimed with is mandatory. Then along with that, if the sentence is giving meaning of joy, so exclaimed with joy. If it is a sentence that gives you the meaning of grief or sorrow, so exclaimed with sorrow. Or if it is a sentence of surprise, so you could go with exclaimed with surprise as well, or exclaimed with wonder. So but exclaimed with will be there. Once again, exclaimed with will be there in all type of meaning sentence. Okay, only this will change meaning: joy, wonder, sorrow. And conjunction, again, just like simple sentences, exclamatory sentences will also have conjunction. That exclamatory sentences में भी conjunction क्या होगा? That. ठीक है? Is it clear? Everyone, students, is it clear to you all? सबको clear है ना? कहाँ गया? मैं अपने आप को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया हूँ ना. मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में ढूंढ दे तो मेरे यार बात बन जानी. रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी. चलो, so let's continue. These are the meanings, and for which type of meaning, what reporting verb you will be using, I have given you the whole table. Like wow, if wow is given in a sentence, it's a, well, I have a little bit of, difference in my thoughts. Like wow comes for surprise as well, so don't get confused ki sir he wow comes for surprise, why have you written in joy? It can be both, but depends on the sentence.
What? How did this happen? Surprise. Well done. Applause. Sorry, I could not help. Regret. Ooh. Contempt. Oh shit. Sorrow and oh. Surprise. Nonsense. Contempt. Hooray! Joy. How could you do that? I mean, how pretty she is. Surprise. Okay? Alas, yaar, I lost my purse. Bravo! We did it! Applause. So these are the meaning, and this is what you are going to write down along with exclaimed with. So exclaimed with के साथ आप क्या ऐड करेंगे वो आप सोच लीजिए, ठीक है? हाँ, नोटिफिकेशन लेट जा रही है, देखो इसीलिए बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। आई गेस मुझे आपसे 3 घंटे पहले क्लासेस शेड्यूल करनी पड़ेगी, बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं जाती है। एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? जिन्होंने अभी ज्वाइन किया मैं उनको बता दूं, एक क्विक रिवीजन अगर दिखा दूं आपको, तो हमने आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से स्टार्ट किया है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग एंड डिजायर। ओके, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और डिजायर्स आपकी आती हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं। हुर्रे, अलास, वाओ, दिस लाइक इट कैन बी द एक्सप्रेशन स्टेट ऑफ जॉय, सरप्राइज, सॉरो, वंडर, एनीथिंग कैन बी। ओके, so when you're changing exclamatory sentence from direct to indirect, so it will be like exclaimed with joy if it is the meaning of joy. अगर आपको सेंटेंस में लग रहा है कि सरप्राइज है तो exclaimed with wonder and exclaimed with surprise भी हो सकता है। then if it is a meaning that expresses a sorrow or sadness, so exclaimed with sorrow. Okay, and don't forget to put conjunction that to join the sentences. Okay, this is what we did today till now. Okay, and these are few expressions and what you're gonna use in place of them, that is over here in the table. I hope this table will definitely help you like that. Okay, here are few examples which I'm gonna explain you, then I'll directly come to the topic. We have questions for you and you're gonna solve it. Okay, चलो, लाइक करने का भैया पैसा नहीं मांग रहे यार, आपसे आधार कार्ड भी नहीं मांग रहे, लाइक तो कर ही सकते हो, ठीक है? She said, wow, what a beautiful flower it is. अब पहले तो मैं इसके कुछ रूल्स बता दूं आपको कि whenever you are changing direct to indirect speech of any exclamatory sentence, make sure that it is a little bit similar to interrogative sentences, because in interrogative sentences also we did, first of all you have to convert interrogative sentences, okay, into simple, then you can change it. Okay, then you need to change it. चेंज तो आप कैसे भी कर सकते हो, सही नहीं होगा। सिमिलरली ओवर हियर इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एज वेल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी पहले उसको सिंपल में कन्वर्ट करना मांगता है बॉस। अगर कन्वर्ट नहीं किया, भूल जाओ कि आपका क्वेश्चन कभी भी सही होगा। क्या करने का, सभी लोग मुझे बताओ, क्या करने का भाई? पहले फटाफट बताओ मुझे। What we have to do first? We have to first convert the sentence into simple. Like if the sentence is how pretty she is, क्या बात है, how pretty she is, और साइन क्या है, ये है आइडेंटिफिकेशन। एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पहचानना बहुत आसान है, एक में क्वेश्चन मार्क होगा, एक में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। हाउ प्रिटी सी इज, इसका सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा? वाह, शी इज रियली प्रिटी। वाकई में बहुत खूबसूरत है भाई वो तो। फिर इसको आप चेंज करेंगे। आया समझ में? एवरीबडी, डिड यू गेट दैट? सब लोग झमसे कि नहीं भाई? एवरीबडी दिमाग में बैठा? सतुरंग सर्व तो काम
अब यहां देखो, वाव है, सरप्राइज है, वॉन्डर है, सो मैंने क्या किया यहां पे देखो, सी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, सी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, देन कंजंक्शन ये रहा देखो दैट, ठीक है। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, ये जो बना है ये रॉन्ग बना है, ठीक है। अब इसको हम सिंपल करेंगे तो ये सिंपल बनेगा, इट इज रियली ब्यूटीफुल फ्लावर, ये इसका सेंटेंस सिंपल बनेगा। वंस अगेन, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, सो इट इज रियली, इट इज वेरी, इट इज इंडीड ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, यहां पे आर्टिकल ए भी आएगा, व्हाट, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल फ्लावर। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो इट का तो कोई चेंज होगा नहीं, थर्ड पर्सन है, इज विल चेंज इनटू वाज, इट वाज रियली अ वेरी, और इट वाज अ रियली, फिर वेरी नहीं आएगा यहां पे, ब्यूटीफुल फ्लावर, सो इट वाज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, हाँ हाँ एरर है बेटा, इवन ये भी जो मैंने आपको बताया ये आप समझ लो, ये चेंज हो जाएगा। सो सेंटेंस क्या बनेगा, दैट इट वाज रियली अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, अब इसको चेंज करते हैं, सी सेड ओ आई लॉस्ट माई पर्स, यार शिट, तो ये क्या है, दुख है, सॉरो है आपका। सो आप क्या करेंगे इसमें, सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, सेंटेंस देखिए, सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो एंड कंजंक्शन दैट, आई हो, ओ विल रिमूव्ड, विल बी रिमूव्ड, ये हट जाएगा क्योंकि आपका ये फीलिंग जो एक्सप्रेस मीनिंग आ रही है सैडनेस की और सॉरो की, वो इसमें आ गई है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ओ विल बी रिमूव्ड। I lost my purse. I, according to the speaker, it should be C. Very good. C, lost is V2. बाकी सारे changes same है, so V2 will change into had plus V3. And I, second form like possessive pronoun is my, so C's possessive pronoun will be her purse. Okay? Everybody understood? Clear है भाई सबको? Or anyone having doubt? So sentence क्या बनेगा, she had lost her purse. नेक्स्ट देखो, डेविड सेड टू हिम, व्हाट डिड डेविड से, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, वाह कितना इंटेलिजेंट है, वेल ये अप्लाउज भी है, ये आप किसी की प्रशंसा किसी की बड़ाई भी कर रहे हैं, तो यू कैन कंसीडर दिस सेंटेंस एज अप्लाउज एज वेल। तो आप ये नहीं सोच सकिए कि खाली इसमें जो लिखा है वही सही होगा या आप गलत हैं, इट्स बेसिकली लाइक व्हाट यू गेट एन आइडिया, लाइक सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, किस तरीके की मीनिंग आ रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, लाइक हाउ इंटेलिजेंट यू आर, वॉन्डर हो, बट इसके साथ साथ ये अप्लाउज भी है, तो यहाँ पे गलत नहीं है ये, बट हम इसके साथ साथ ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो क्या निकला, डेविड एक्सक्लेम्ड विथ वॉन्डर और डेविड एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज दैट, क्या कहा, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तो इसका सेंटेंस सिंपल क्या बनेगा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। यू अकॉर्डिंग टू हुम, लिसनर, लिसनर कौन है, हिम, हिम के लिए सब्जेक्ट, ये यहां पर बनाया नहीं है, ठीक है, हिम के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, आर का क्या चेंज हो जाएगा, वॉज वेयर, सो ही इज सिंगुलर, सो वॉज, ही वॉज वेरी, क्या क्या, ही वॉज वेरी, सो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर है सबको, इज इट क्लियर एवरीवन और नॉट? चलो वेरी गुड, थैंक यू सो मच डियर। चलो कुछ सेंटेंसेस यहां पर भी हैं, जैसे ये है हुर्रे,
वी वॉन द गेम, हुर्रे वी वॉन द गेम। ठीक है, तो यहां जब हम इसको चेंज करेंगे, हुर्रे इज यूज्ड फॉर जॉय, सो एक्सक्लेम विद जॉय कंजंक्शन दैट वी वॉन द गेम, वी आर अस changes into their them, so we will change into they, won is v2 will change into had plus v3 the game, that's it, rest all changes will be same. He said, alas I failed the test, so he exclaimed with sorrow, alas is used for sorrow, so he said, alas I means who, according to speaker he, so he will be there after conjunction, failed again v2 will change into had plus v3, then the test, simple. Last one, he said, hooray I bought a nice t-shirt, this is a feeling of joy, so he exclaimed with joy, he exclaimed with joy, here what will be using as conjunction, that I bought a nice shirt, I again according to speaker, so he bought is v2, so here we'll be writing had plus v3, so I had bought a nice t-shirt, then whatever it is written correct, so here it will be had plus bought, third form. ठीक है, चलो रेडी फॉर द क्विज, मैं यहां पे करूंगा, लाइक क्वेश्चंस विल कम ओवर हियर एंड यू नीड टू आंसर। हाँ आज थोड़े कम है बट नो नेवरदलेस कोई बात नहीं। सॉरी गाइस, पोल नहीं होगा, ऑप्शंस होंगे, यू हैव टू गिव द ऑप्शन। ठीक है, पहले यहां देख लेते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो क्विज ही, तो नेक्स्ट सेशन एक उसी का रख देंगे, पूरा क्विज का ही। नेक्स्ट सेशन आई विल मेक वन complete quiz, like let's do one thing, today we are completing direct indirect, okay, today we are completing direct indirect, so saturday को जो हमारा सेशन होगा वो एक मेंटी रख देते हैं। ठीक है, बहुत दिन से मेंटी क्विज नहीं किया, सो सैटरडे का पूरा सेशन हमारा मेंटी क्विज का, व्हाट यू गाइस से, क्या कहते हो, चलेगा? Saturday's complete session will be on Menti quiz. चलो ये रहा, मुझे इसका आंसर बताइए। द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज, नहीं श्रेया मैं भूला नहीं हूं बेटा, आई हैव चेंज्ड माय स्कूल, मैंने स्कूल चेंज कर दिया है, सो लाइक फ्यू फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लीटेड, कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ रही हैं जिसकी वजह से, क्योंकि ईयर एंड हो गया है, अप्रैल से आज से नया सेशन चालू हुआ है, तो मुझे दूसरे स्कूल में जाना है, तो मुझे पुराने स्कूल की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, इसलिए एक दो दिन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज मैं भूला नहीं हूँ, आई रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर, डोंट वरी। वेरी गुड अनूप, रंजन प्रशांत, चलो ऑप्शंस इसके आंसर बोलो फटाफट। काम करता हूं, नेक्स्ट टाइम से आप लोगों के लिए टाइमर दे दूंगा, अभी तो मैंने टाइमर नहीं रखा है, मैं टाइमर डाउनलोड करूंगा और उसको यहाँ पे रख दूंगा, टेंशन मत लो, ऑनलाइन टाइमर रखने के लिए टाइम लगता है, मुझे ये ध्यान नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम से यहाँ मैं आई विल पुट टाइमर ओवर हियर, यहाँ पे टाइमर रख दूंगा, स्टॉप वॉच। ठीक है, चलो लेट अस सी, सो फाइनली बी इज द आंसर, एवरीबॉडी आर यू लाइक अग्रीइंग, क्या लग रहा है? बी आप सभी ने कहा है। अब चलो देखो, टीचर का ये ऑर्डर आया है बी क्वाइट, क्या टीचर ने बोला है कि बी क्वाइट, पहले तो मुझे ये बताओ ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, आपके ऑप्शंस हैं ए असर्टिव, बी
एक्सक्लेमेटरी, सी इंपेरेटिव, यही पता चल जाएगा सब कुछ। विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट? फटाफट बताओ मुझे। चलो भाई, क्या कर रहे हो? प्यार की कागज से। सेशन से पहले भी मैं वही देख रहा था, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज ओल्ड टाइम 90s की, जिगर। दिल की कलम से पहली बार नाम लिखा मैंने खत। आई नो आई एम अ वेरी बैड सिंगर, बट ठीक है। मैंने। वेरी गुड श्रेया। इट्स अ इंपेरेटिव सेंटेंस। इट्स एन इंपेरेटिव सेंटेंस। हाउ कम? ये देखो, बी क्वाइट, सब्जेक्ट नहीं है पहला, दूसरा ये सिंपल सा ऑर्डर है, ठीक है। अब देखो, यहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो पहली चीज आपको देखनी है भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको कंजंक्शन क्या बोला है, टू या नॉट टू। टू फॉर पॉजिटिव, नॉट टू फॉर नेगेटिव। यहां पे कंजंक्शन दैट, रॉन्ग। यहां पे कंजंक्शन दैट, रॉन्ग। अब कंजंक्शन टू यहां है और यहां पर है, ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं। ये एग्जाम में सबसे बेस्ट वे है, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपने जैसे ही पता किया कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव है, उसमें कंजंक्शन टू या नॉट टू होता है, यहां पर दैट है और यहां पर दैट है, तो दो वहीं पर खत्म हो गए। यहां पर टू है और यहां पर टू है। टीचर कभी भी अर्ज नहीं करेगा। अर्ज मतलब रिक्वेस्ट, एक तरीके से टीचर रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ऑर्डर करेगा। सो द टीचर कॉल द बॉयज एंड ऑर्डर देम, उनको ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, टू बी क्वाइट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। हु गेव बी एज द करेक्ट, हु गेव बी, किसने बी दिया था? क्रिस ने बी दिया हुआ है, अभिषेक ने बी दिया हुआ है, शालू ने भी बी दिया है। सो आई विल बी राइटिंग नेम ओवर हियर, मैं यहां पर नेम लिखते जाता हूं हर स्लाइड पे। क्रिश, शालू एंड अभिषेक। बिग हाई फाई टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो, ये बड़ा वाला स्टार आप लोगों के लिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किंजल सेड, अलास आई हैव फॉलन अगेन। अरे यार, मैं फिर से गिर गई। हाँ, वो एक्स्ट्रा जोड़ा गया अपनी तरफ से बेटा। इनडायरेक्ट स्पीच में हमने बोला ही है कि थर्ड पर्सन को जब हम बताएं तो अपनी तरफ से कुछ ऐड अपडेट करके बताते हैं, तो वो अपनी तरफ से ऐड किया कि टीचर ने बुलाया और बोला, ठीक है। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का। चलो, वेरी गुड। श्रेया, श्रेया ने ए कहा है। श्रेया सेड ए। फटाफट मैं यहां नाम लिख दे रहा हूं। श्रेया ने ए कहा है। व्हाट अबाउट क्रिश? ओके, अभिषेक एंड रंजन का ए है, अभिषेक बी कह रहे हैं, रंजन ए एंड अभिषेक बी। अब चलो देखो, पहली चीज तो ये देखो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यानी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऊपर से अलास है, यानी ये सैडनेस और सॉरो की फीलिंग है, ठीक है। तो जॉय पहले कट गया, ये सॉरो, ये सॉरो, ये सॉरो। इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्या यूज होता है, दैट। यहां पर दैट है, यहां पर ये तो खैर कटा ही हुआ, यहां पर दैट नहीं है, कट गया। यहां पर भी दैट नहीं, ये लो, माय गॉड, एक ही बार में आंसर मिल गया।
बिना कुछ किए आंसर दे दिया भाई मैंने। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कोई चेंज नहीं किया, खाली रूल से फाइंड आउट कर लिया। ये रहा साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सॉरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से पता चला ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अलास से पता चलता है ये सॉरो की फीलिंग है, तो जॉय पहले कट गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजंक्शन दैट होता है, यहां दैट नहीं है, बट ऑब्वियस, ये खत्म, दैट्स इट भाई। इसके लिए लाइक बनता है बॉस, इसके लिए तो लाइक बनता है बॉस, मैं आपको बता दूं। या दिस इज व्हाट वी कॉल सिंपल ट्रिक, इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं सिंपल ट्रिक। ये आपको बेस्ट तरीका है एग्जाम में टिक करने का। ओ माय कैट इज डेड यार, शिट। आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की क्वालिटी है, लाइक फॉर एग्जांपल या, हम जनरली बोलते हैं ना या कितनी तरीके से बोल सकते हैं या। फिर किसी ने कहा आई विल टेक यू टू गोवा ऑन माय एक्सपेंस, या सीरियसली, या हैप्पीनेस, सरप्राइज। तो एक ही वर्ड को आप कितने सारे एक्सप्रेशन से कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इंटोनेशन। अलग अलग एक्सप्रेशन है ना, आप कोई चीज को बताएं। या ओ यार कैट डेड है, यानी जॉय तो है नहीं, ये 3 सौरव हुए, यहां कंजंक्शन दैट नहीं है, यहां पर कंजंक्शन दैट है, यानी ये कट चुका है। ठीक है, अब मार्केट में सिर्फ ये है और ये है। अब जरा देखिए, इज है यहां पे। भाई मुझे एक बात बोलो, मैंने आपको बताया हुआ है, एक सिंपल सी ट्रिक बता दूं, डायरेक्ट स्पीच में कभी भी इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज कभी भी नहीं आ सकते। मैं आपको एक आज लिख के ले लो, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर ले लो और उस पर लिख के ले लो, ठीक है, मेरे से लिखवा लो, साइन करवा लेना, ठीक है, कि कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हो, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज आ ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो ये इज कहां से है भाई, तू चलट इधर से चल, रॉन्ग भाई। ट्रिक के लिए ताली बनती है भाई, ट्रिक के लिए ताली बनती है, लाइक बनता है, थम्स अप बनता है, ठीक है। चलो, ओ हाँ, बोलना ना पड़े, सब्सक्राइब कर देना एंड डू प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई एम ऑन यूट्यूब यार, कम ऑन। Oh my God, nonsense। ओ निधि जी, मैम खंबागढ़ी, ठीक है। चलो ये छोरी आई, हरियाणा दी छोरी आई है, ये जवाब देगी, ठीक है। ओ भाई जवाब दो यार। चलो फोर्थ, नॉनसेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कंजंक्शन दैट होगा, इन तीनों में दैट है, इज हो नहीं सकता, इट नॉनसेंस नहीं होता। देखो मैं आपको एक तरीका बता दूं, मैंने मान लिया मेरे को नहीं आता डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मेरे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता चेंज करना, मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना नहीं आता, कैसे चेंज करते हैं, रूल पता है लेकिन मेरे को। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूल कहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूल कहता है कि कंजंक्शन दैट होना चाहिए। यहां पे दैट है क्या, नहीं है, काट दिया, चलो ठीक है। दूसरा रूल कहता है कि वर्ब के साथ, ठीक है, V1 होगा तो V2 होगा, इज, एम, आर होगा तो वॉज, वेयर होगा, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं। इट नॉनसेंस क्या होता है, अरे इट इज नॉनसेंस, इट वॉज नॉनसेंस, कोई हेल्पिंग वर्ब तो दिखे, ये गलत हो गया। फिर से इज आया, बोल बोल के गला बैठ गया मेरा भाई,
कभी भी इज एम आर अब બધું આવતું જ નહીં સાહેબ, आता ही नहीं है, કેન્સલ કરો ચાલો આમને પણ ચોક્કસ આપણે સી એટલે રાઈટ આન્સર જોઈ લો. ઓ માય ગોડ, અમનજીત શાહ, ભાલો આશી from Kolkata, love from Kolkata, thank you so much dear for joining. See, this is what we call, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं. अगर आप ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं, कभी रॉन्ग कर ही नहीं सकते भाई, मैं बोल रहा हूं कभी भी गलत हो ही नहीं सकता आपका. ચાલો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. એક દિન ના પૂરા ગુજરાતી का સેશન લાऊंगा, વન ડે આપણે ગુજરાતીમાં પણ ક્લાસ કરીશું, જોઈ લેજો તમે લોકો. ગુન્નુ સેડ હુર્રે, ओहो आई हैव पास्ड अल्टीमेटली सर, मैं पास हो गया, पप्पू पास हो गया. चल लेट्स राइट गुन्नू इन प्लेस ऑफ गुन्नू, लेट्स राइट पप्पू. पप्पू पास हो गया. टेक पप्पू, आई कैन नॉट राइट लाइक 4 टाइम्स, कौन लिखेगा यार. हमारा पप्पू पास हो गया. चलो हुर्रे, इट्स अ जॉय, ये जॉय 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 जॉय. भाई तुम लोगों को बोल बोल के थक गया मैं, टू नहीं आता एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में. कट मारो इसको, चलो हमने कट करो. हैज हैव चेंजेस इनटू हैड, जो कहीं क्या चाहिए हैड, यहां पे हैड नहीं, गलत हो गया. अभी ये और ये में से कोई हो सकता है, ठीक है. अब देखो आई फर्स्ट पर्सन चेंज होता है बोलने वाले के अकॉर्डिंग, बोलने वाला पप्पू है या गुन्नू जो भी है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या आएगा, ही. ठीक है, यहां पे तो आई का आई कर दिया, यानी प्रोनाउन तो चेंज किया ही नहीं, रॉन्ग, डी करेक्ट, दैट्स इट. भाई इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, इससे ज्यादा मैं क्या कोई नहीं समझा सकता. इससे आसान कोई तरीका हो सकता है क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का? इससे आसान तरीका तुम मुझे लाके बता दो, इससे आसान तरीका तुम मुझे लाके बता दो. नहीं, पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा मैं, वो अप्लाई कर लूंगा, सिंपल. इससे आसान तरीका तुम लोग मुझे लाके बता दो, मैं वो अप्लाई कर लेता हूं. अरे बाबा एज सिंपल एज दैट. टू कंजंक्शन होता ही नहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, पहली चीज. ठीक है, हैज हैव है तो ये चेंज होता है हैड में, यहां पर हैड है नहीं, हैड कहां आया, यानी ये दो रॉन्ग हो गए. अब बच्चे ये दोनों, ठीक है, यहां पे आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर, फॉर गुन्नू इट विल बी ही. ये रहा, डन. दिखा, बोला था ना मैंने. तो एक बार क्लास देखो बस, धाकड़ क्लास होती है एकदम की, धाकड़ है ऐसी धाकड़ है. Hi, hurt hacker. Well, Emma said, what a beautiful house it is. Wow. What a beautiful house it is, man. क्या घर है यार. Of course, wonder, surprise. यहां पर तो कंजंक्शन ही नहीं है, ठीक है, ये तो सरप्राइज की बात है. तो ये रहा दैट, ये रहा दैट. इज का वॉज होता है भाई. कितनी बार बोलो यार, एक ही क्वेश्चन कितनी बार समझाने का, सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, एक क्वेश्चन बार बार पूछते हो यार. ये हैप्पी हुआ तो कट गया, यहां पे कंजंक्शन ही नहीं है, कट गया. यहां इसका वॉज ही नहीं किया, कट गया. लो, आई मीन इससे इजी क्या समझाऊं मैं, बोलो. वहां निधि मैडम कहां है, आपका कुछ पता नहीं चल रहा है भाई. देखा, मैं बोल लिया था ना, समथिंग लाइक दैट. हरियाणवी ना, हरियाणवी बोलना मुझे भी सीखना पड़ेगा. सॉरी बावरी सो, हल्का मारवाड़ी मैचिंग रहता है, मारवाड़ी टोन रहता है हरियाणवी में. She said, my God, you have injured your leg. Surprise.
माय गॉड, लुक एट योरसेल्फ, कितना खून निकल रहा है यार, कर क्या दिया, एक्सक्लेम विथ शॉक, शॉक लगा लगा लगा, हेवेल्स, दैट भी सब में है, माय गॉड, यू भी सब में है, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। अभी हैव का क्या चेंज होता है, हैड, यहाँ पे हैड नहीं है, देखो तरीका देखो, दिस इज व्हाट, ये देखो दो कट किया मैंने, यू देखो हैड इंजरी है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, इंजर्ड होना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। वन ट्रिक, ओ माय गॉड, कोई डिसलाइक वाला भी है क्या, हे भगवान हे भगवान हे मारा राम जी, ये कौन है डिसलाइक वाला, कौन छे आ, चलो नाम क्यों है, कौन छे आ डिसलाइक वालों, भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आएगा तो मजा आएगा। चलो अच्छे बच्चे की तरह लाइक हटा दिया, क्या बात है, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम, हुएवर इट वाज। चलो, द गर्ल सेड हेल्प, हेल्प, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है। चिल्ला रही है वो, हेल्प हेल्प, तो गर्ल साउटेड, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखो वैसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है एक्सक्लेमेटरी के लिए, लेकिन आप देखो क्योंकि वो लड़की चिल्ला रही है तो उसके लिए डायरेक्टली इन्होंने साउटेड ले लिया, ठीक है, किस लिए चिल्ला रही है वो, बहुत ही गुड क्वेश्चन है, लड़की चिल्ला किस ले रही है, तो इस हेल्प को ही डायरेक्टली हमने चेंज कर लिया, कोई कंजंक्शन नथिंग इज रिक्वायर्ड, द गर्ल साउटेड फॉर हेल्प, दैट्स इट, या कोई कंजंक्शन नथिंग इज देयर, बिकॉज सेंटेंस ही पूरा नहीं कंप्लीट हो रहा है, ओनली वर्ब इज देयर, ओनली एक्शन इज देयर, हेल्प एंड हेल्प ना, तो हमने उस एक्शन को रिपोर्टिंग वर्ब बना लिया कि चिल्ला रही है, किस लिए चिल्ला रही है, फॉर हेल्प, दैट्स इट, खत्म, समझ में आएगा तो मजा आएगा। तेरे दर पे सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, सांसों की जरूरत है जैसे, यस श्रेया, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मैंने 1 साल, 1 ईयर बिफोर, 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे जाके उसमें देख लेना प्लेलिस्ट में, उसको तो मैंने बकायदा डीएसएलआर से शूट किया हुआ है, इतना क्लियर बनाया हुआ है, बट अनलकी कोई जानता नहीं था अरुण सर को उस टाइम पे, तो उस पे व्यू कितने हैं, किसी पे 500 है, किसी पे 600 है, कोई व्यू ही नहीं है उस पे, कोई दिखता ही नहीं था, लाइक नाउ आई कैन सी, यू गाइस कैन गो एंड सी, प्लेलिस्ट में जा सकते, जाके देख लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पूरा नाउन से लेके पूरा इंटरजेक्शन तक। अब चलो इसको देखो, ओ डियर, शिट यार, आई हैव स्पॉइल्ड योर वर्क, सॉरी यार, जॉय तो है नहीं है, ठीक है, यहां पे कंजंक्शन टू है, ये कट गया, आई अकॉर्डिंग टू जॉन, ही हुआ, यहां पर भी ही है, हैज हैव चेंज हुआ हैड में, यहां हैड हुआ, यहां पे नहीं हुआ, यस, गॉट इट, आ गया समझ में, समझ में आया क्या, इधर देखो, यहां पे कंजंक्शन कैसे रॉन्ग करते वो देखो, यहां पे कंजंक्शन टू गलत, ठीक है, हैज हैव विल चेंज इनटू हैड, यहां पे हैड हुआ है क्या, नहीं हुआ, गलत, ठीक है, यहां पर हैड हुआ है और यहां पर हैड हुआ है, लेकिन यहां पर
ये तो जॉय है, जॉय तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अब यार मैंने तुम्हारा काम खराब कर दिया। हाँ, ईमेल राइटिंग। आप अगर ईमेल राइटिंग, मेरा नाम मत डालिएगा, आप सिर्फ ईमेल राइटिंग सर्च करिए, यू विल फाइंड इन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पे होगी। ये रहा, ये भी अभी वो हेल्प हेल्प जो हमने क्वेश्चन किया ना इसकी तरह है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा 8th की तरह है। वी सेड टू हिम कंग्रेचुलेशंस, वी सेड टू हिम कंग्रेचुलेशंस, हमने उसको बोला कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमारा एक्शन है, दिस इज एक्शन वर्ब। तो हमने उसको कंग्रेचुलेट किया ना, तो कंग्रेचुलेशंस V1 है, डायरेक्ट V2 कर दो, वी कंग्रेचुलेटेड हर या वी कंग्रेचुलेटेड हिम, हमने उसको कंग्रेचुलेट किया, दैट्स इट। पवन जी आई गेस आज रहने देते क्विज़ी के लिए, हम लोग सैटरडे का जो सेशन है ना मेंटी कर रहे हैं, सैटरडे को सुपर मेंटी हो रहा है, सैटरडे 1 आवर फॉर मेंटी, 1 कंप्लीट आवर फॉर मेंटी, 30 क्वेश्चंस ले लेंगे, 30 to 40 क्वेश्चंस विल बी ओनली मेंटी, पूरा असर्टिव से लेके एक्सक्लेमेटरी तक चारों। आज 15 क्वेश्चंस कर डालते हैं, ठीक है। सी सेड, उफ इट्स टू हॉट यार, कितनी गर्मी है। डिस्गस्ट, कंजंक्शन दैट, दैट टू, रॉन्ग, रॉन्ग, लटका गया, अभी यहां पर भी दैट है, ये 3 है, ये मार्केट में है। इट इज, इट शुड बी, इट्स मतलब, इट्स का मतलब क्या होता है, इट इज, सो इट शुड चेंज इनटू वाज, यहां हैज में चेंज हुआ रॉन्ग, यहां पे इज रॉन्ग हुआ, ओ यस राइट आई गॉट इट। भाई मेरे को चेंज करना आता ही नहीं है, मुझे चेंज करना नहीं आता डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, मैं फिर भी सही कर सकता हूं, मुझे सारे चेंजेस के सिर्फ रूल्स लर्न हो जाए ना, मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा सही कर दूंगा, गलत कर ही नहीं सकता। फिर से देखो क्या लिखा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो भाई टू कंजंक्शन होगा ही नहीं, दैट होगा, इधर दैट हुआ, इधर दैट हुआ, इधर दैट हुआ, ये इट इज है, इज विल चेंज इनटू वाज, ये हैज है, ये इज है, ये रहा। इससे आसान भाई तो मुझे सिर्फ लाके बता दो, कहीं से भी लाके बता दो, गंगा नहा लेंगे हम, कोई मुझे बता दो कि इससे आसान कोई तरीका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो मैं ठीक है वो अपना लूंगा, और क्या, ये नहीं बोलूंगा ना जो उसमें आके मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, नहीं, क्यों छोड़ दो, इतनी मेहनत से चैनल बनाया है, 2 साल से वीडियोस बना रहे हैं, अब तो लाइव पढ़ा रहे हैं, ये देखो 10-10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आप लोग शेयर ही नहीं करते किसी से, क्या होगा, सब अकेले अकेले पढ़ लेते हैं। यू नो आई हैड अ स्टूडेंट 2 year before, like 1 year before, like one of my favorite student till now, of course you guys are there, hi राहुल कोठारी जी, क्या बात है, पंकज कोठारी was one of my favorite, one of my like colleague तो नहीं कह सकते, स्टूडेंट था मेरी स्कूल लाइफ में, पंकज कोठारी, राइट नाउ इज सीए। पंकज देख मैंने तेरा नाम ले लिया, तू बोलता रहता था मेरा नाम नहीं लेता, पंकज कोठारी, ठीक है, शेयर ही नहीं करते आप लोग, आप लोगों ने वो वाला वो छोड़ गए, शेयरिंग इज केयरिंग, भाई दूसरों की भी मदद करो यार, वो थैंक यू नहीं बोलना, 2 लोगों को और बता देना, सब्सक्राइब भी करवा देना। चलो नेक्स्ट, सी सेड हाउ हैप्पी आई एम, सी कितना खुश हूं मैं, दिस इज जॉय, ये रहा फिर से टू आया, लटका, ये कट गया, सौरव तो है ही नहीं भाई, हैप्पी हूं तो सौरव कहां से हुआ, इज कहां से आएगा, ये लो, यस डन। भाई समझ में आया कैसे फाइंड किया, मैं भाई मुझे नहीं आता डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते, बट मुझे रूल सारे लर्न है,
मुझे नहीं आता डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, बट आई नो ईच एंड एवरी रूल। रूल आता है ना मुझे, हैप्पी हूं ना मैं इसमें, खुश हूं ना तो सौरव तो होगा नहीं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कंजंक्शन दैट होगा ना तो टू को हटा दो। इज एम आर विल चेंज इनटू वाज वेयर, ये इज क्यों है, वाज होना चाहिए, दैट्स इट, हो गया खत्म। ऋतिक भाई थैंक यू सो मच भाई, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, તમે લોકો ક્લાસ જોઈન કર્યા, લાઈક કર્યું, તમારા લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ લોકો, ઠીક છે। तू हो एक देविल मेरा यार, तेरे जैसे दुनिया में कोई नहीं, जिस देखूं नजर तू ही है वही, जन्म प्यार ना मिले तो मर जाऊं। ओ वाह, चलो चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर सेड, दो और क्वेश्चंस होंगे, आई गेस 5 मिनट के अंदर हमको 10:30 तक वाइंड अप कर देना है। द टीचर सेड व्हाट्स द मैटर मैन। अब देखो इसमें कोई मीनिंग नहीं आ रही है, व्हाट्स द मैटर क्या हुआ, ना ये गुस्से का मतलब पता चल रहा है, ना सरप्राइज, ना एंगर, ना हैप्पीनेस, कुछ नहीं पता चले। तो आज तो हमारे पास है ही, लंगर में मिला हुआ खैरात में हमारे पास आज है ही। ओ कोठारी भाव, मैं तो सूरत से हूं, कोठारी जी मैं सूरत से हूं। हिमांशु कश्यप, इज इट वेदांत कश्यप। ऋतिक शर्मा, हेलो ऋतिक भाव। हर्ट हैकर, चलो देखो, व्हाट नहीं समझ में आया कोई मीनिंग तो दैट है, ठीक है। व्हाट इज द मैटर, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पहली चीज तो ये देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन है, सेम कंजंक्शन होगा, सो व्हाट इज द मैटर, तो ये सेंटेंस सिंपल बनेगा, व्हाट द मैटर इज। व्हाट द, मैंने बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहले सिंपल बनाने का। व्हाट द मैटर इज, मैटर में तो कोई चेंज आएगा नहीं, इज तो होगा नहीं, इज का वॉज बनता है, हैड बीन तो होगा नहीं। व्हाट वॉज द मैटर है, ये भी रॉन्ग हुआ। सी मुझे रूल्स आते हैं, चेंज करना भले ना आए, सिर्फ मुझे रूल्स आ जाए मैं सब कुछ बदल सकता हूं। किस्मत बदलती देखी मैंने, जब बदलता देखा। देखो आज WH क्वेश्चंस हो गए, इज द मैटर, इज यहां आ जाएगा तो सिंपल द मैटर इज का वॉज हो जाएगा, मैटर क्लोज, चैप्टर क्लोज, बाकी सब भजन कर रहे हैं ये। हिमांशु, ऋतिक, पंकज कोठारी, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। हमारा जो वीडियो है, हमारा लाइव क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हमारा क्लासेस रेगुलर होता है, ठीक है, मिस मत करियो। एक को भी अगर आपने मिस कर दिया ना, फिर हम तुम्हारी मदद नहीं ना कर पाएंगे, फिर हमको नहीं ना बोलिएगा कि हम सर हम डेली ज्वाइन करते पर हमको कुछ समझ नहीं ना आया, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बता दे रहे हैं आपको। चलो सी सेड, अरे आजकल वो प्रचार चला है ना VI का, सी शेल वाला, थोड़े कस्टमर थे वो भी चले दूसरी ओर, देन सी शेल ऑनलाइन कर दिया। आज जो न्यू कोर्स आ रहा है 9:30 को ही होगा। बाय द वे गाइस लेट मी टेल यू, हमारा नया कोर्स आ रहा है यूट्यूब पे फॉर मैथ साइंस एसएस एंड इंग्लिश कंप्लीट बैच फॉर 10th स्टैंडर्ड। एक बार थोड़ी थोड़ी प्रमोशन जरूरी है भाई, मांगता है बॉस, पता तो चलना चाहिए ना। इट्स अ कंप्लीट बैच फॉर क्लास 10th। हो सकता है मैं साइंस और मैथ्स में थोड़ा डिले हो, क्योंकि मैम और सर इज इन विलेज, तो नेटवर्क नहीं है, और इवन दो दे आर ट्राइंग, आज मैं उनसे बातें कर रहा था, ट्राई कर रहे हैं वो लोग, अगर सेशन लेंगे एक दो, अगर बराबर नेटवर्क रहा, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये OBS स्टूडियो पे बहुत जबरदस्त नेटवर्क होगा तो ही चल पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होगा तो इस मंथ में मैं कंटिन्यू कर दूंगा, बट मैं सर मैथ्स की क्लास तो हो जाएगी, मेनली प्रॉब्लम साइंस की क्लास में होगी, उसकी क्लासेस के लिए मैम इज इन विलेज, और उत्तर प्रदेश का तो नेटवर्क आप लोग जानते ही हो क्या है। once she'll be back then definitely she'll continue, okay। हाँ तिवारी जी,
SBI लाइक करो यार, नहीं SBI वाले नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले, एक्सिस बैंक वाले, HDFC वाले सब लाइक करो। कंप्लीट बैच है, मैथ्स के लिए है, उसमें मैथ्स भी है, साइंस भी है, और इंग्लिश एसएस के लिए तो भाई है तुम्हारा, भाई बैठा हुआ है, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। एसएस इंग्लिश का टेंशन छोड़ दो। अरे वो मैंने एक कॉमेडी देखी थी, एक फोन उठा तो लाइक कर, अरे कर ना। 15th he said to his servant, go at once, चलो चलो अपना काम करो। अपने नौकर से रिक्वेस्ट करोगे? नहीं ना, रिक्वेस्ट नहीं ना करोगे आप, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं होगा ना। अब भैया यहां ऑर्डर दिया है तो इन दो को काहे ले लो, हो गया, बस खत्म, खलास खत्म, फिनिश हो गया, आंसर आ गया। Yeah, when Arun sir is here, you need not to be in fear, especially for English and social science. So as for maths and science, when ma'am and sir will start taking classes, thank you नहीं बोलने का, दो लोगों को शेयर कर देने का, और उनको बोलने का कि वो दो को और शेयर करे, बस। फ्री में पढ़ो ना बाबा, when भाई है तुम्हारा, टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट, 14th का आंसर, 14th का आंसर नहीं किया हमने। ओहो, ऐसे कैसे भूल गए यार। अच्छा चलो चलो, हम तो भूल ही गए 14th का आंसर। हाँ, हम प्रमोशन करने में इतने बिजी हो गए कि हम भूल ही गए कि हमने क्वेश्चन ही नहीं किया। ओहो रंजन, थैंक यू सो मच फॉर लाइक रिमाइंडिंग मी यार, अच्छा हुआ याद दिला दिया तुमने। बाय द वे आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल पे बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, उसके लिए हम बहुत eagerly वेट कर रहे हैं। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, एक बड़ा वाला सरप्राइज आएगा सभी के लिए। गिव अवे होने वाला है 10,000 पे, 10,000 सब्सक्राइबर पे गिव अवे, बड़ा वाला गिव अवे हम करने वाले हैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सी सेड हेलो, यू आर हियर, हेलो, इधर क्लास में दो ना ध्यान, किधर किधर है भाई। और हमें तो चौक उठाया टीचर ने, भाई किधर, इधर इधर, उधर बोर्ड नहीं है, यहां ध्यान दो। अब यहां किस मीनिंग में दिया है, वाओ, हेलो, हाउ कम यू हियर, सरप्राइज। सी मीनिंग देखो, हेलो क्या हो रहा है भाई, यहां यहां, हेलो हाउ आर यू मैन, लाइक यहां कैसे, हाउ आर यू, दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस, इसको बोलते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, हेलो कट गया, ठीक है, सरप्राइज है, अमेज भी हो सकता है, वॉज सरप्राइज्ड, देखो इज तो हो नहीं सकता क्योंकि पास्ट बनेगा, सिंपल सा है, ठीक है, तो इज सरप्राइज तो हो ही नहीं जा सकता। वॉज हो सकता है, वॉज अमेज्ड भी हो सकता है, सरप्राइज भी, दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन यू चेंज होगा लिसनर के अकॉर्डिंग, तो यू ही तो नहीं रहेगा ना, तो ये रहा भाई, मेरे को नहीं आता, मुझे नहीं आता चेंज करना, मैं क्या करूं, मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, नहीं आता मुझे चेंज करना। किया ना मैंने, सही समझ में आया। इधर देखो, रिपोर्टिंग वर्ब है इज सरप्राइज्ड, भाई सेड है, पास्ट है, प्रेजेंट काहे बना रहे हैं, रॉन्ग करो, ये तीनों वॉज हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब भाई जब तुम इधर आते हो तो यू को चेंज न करोगे कि नहीं ना करोगे, सेकेंड पर्सन है ना, तो लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज करोगे ना, तो यू को यू ही काहे रखे हैं, काट करिए इसको, सी को करेक्ट कर दीजिए, हो गया, लीजिए हो गया। पंद्रह नंबर का क्वेश्चन तो हम आपको पहले ही बता ही चुके हैं, तब गलती बिल्कुल करिएगा नहीं, 15 क्वेश्चन हम आपको करा दिए हैं। अब हम आप लोगों से मिलेंगे सैटरडे को रात को 9:30 बजे, ठीक है,
सैटरडे को 9:30 पे मिलने वाले हैं हम लोग, महा मेंटी कर देंगे। लो, मैराथन मेंटी जिसको कह लो। कितने 30 to 40 क्वेश्चन का मेंटी होगा, मिक्स, असर्टिव से लेके एक्सक्लेमेटरी तक, असर्टिव से लेके एक्सक्लेमेटरी तक, सब कुछ छोड़ेंगे नहीं। हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, शेयर कर देना यार प्लीज, लाइक तो कर ही देना बॉस, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड विद द सिग्नेचर स्टेप। हेलो, अपना ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखिए, दोस्तों में मित्रता बनाए रखिए, और अगर कुछ कर सकते हैं तो एक काम करिए, घर पर बने रहिए और अरुण सर के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। और ध्यान रखिए, जब तक वैक्सीन नहीं लगती, ढिलाई नहीं, हाँ समझ गए ना, ठीक है। जब तक दवाई नहीं, अब तो दवाई भी ढिलाई भी, कढ़ाई ढिलाई नहीं है। श्रेया बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड यू, मैं समझ सकता हूं। मैं बहुत जल्द आपके लिए, मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि नई बैच चालू हो उससे पहले मैं जूम रख लूं, ठीक है। डोंट लाइक हाथ मत जोड़ो यार, ऐसा करोगे तो फिर मैं लाइक चलो डेफिनेटली कर दूंगा मैं, इट्स प्रॉमिस, ठीक है। बाय द वे, वो गाना आपने नहीं सुना, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। चलो बाय बाय।